Good afternoon, everyone. This is Manvi Saraswat, and I'm going to present on the topic Art and Architecture of Mughal period. So, first of all, these are the sources. Then, now the questions that could be asked related to this topic are: first, trace the development of architecture under the Mughals and point out the mingling of Hindu elements in them. Second is discuss the contribution of Muslim rulers in the development of Indian architecture. Third is describe the growth of architecture under the Mughals. Fourth is describe the contribution of the Mughals in the field of painting. What were the themes of Mughal painting? And fifth is describe the development of literature under the Mughals. Then sixth, describe the evolution of the Mughal architecture from Akbar to Shah Jahan. And seventh is describe the growth of architecture under the Mughals with special reference to Shah Jahan. ये जो सेवेंथ क्वेश्चन है दैट कुड बी आस्क्ड इन स्पेशल रेफरेंस टू एनी ऑफ द मुगल रूलर बी इट अकबर और बी इट जहांगीर. So let's start. So first of all, art. So the Mughal school of painting, as you all know, is famous worldwide, not only in India, but also it has different in different countries. Also, it has its basic means, and then it has gained recognition as a distinctive style of painting, which had a rich tradition to fall back upon, and it reached full maturity during the 17th century. It created a living tradition of painting which continued in different forms in different parts of the country along after the glory of the Mughals had disappeared. Mughals के बाद भी the paintings continue to flourish. अगर हम अर्ली ओरिजिन्स की बात करते हैं तो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग दैट कुड बी ट्रेस्ड बैक फ्रॉम काबुल. सबसे पहली जो अर्ली ओरिजिन्स है उनकी मुगल पेंटिंग की वो काबुल लाइक उलुग बेग के टाइम पर मिली है, हु वाज द टिमुरिड रूलर ऑफ काबुल बिफोर बाबर. उसके बाद बाबर एंड कामरान दोनों ने यही ट्रेडिशन कंटिन्यू किया. उसके बाद हुमायूं आए और ही आल्सो डिड दैट एंड कैरीड फॉरवर्ड एंड स्ट्रेंथेंड इट. हुमायूं के एग्जाइल के टाइम पर पर्शिया में बेहजाद वाज द मास्टर पेंटर, वाज एट द हाइट ऑफ हिज फेम आल्सो. तो बेहजाद मास्टर पेंटर, उन्होंने काफी पेंटिंग्स बनाई हैं हुमायूं के टाइम पे दैट आर वाइडली फेमस. हुमायूं आल्सो पैट्रोनाइज मेनी ऑफ हिज डिसिपल्स, जिसमें से दो बहुत फेमस हैं विच आर मिर सैयद अली एंड अब्दुल समाद, हु आल्सो जॉइंड हिम इन अफगानिस्तान एंड देन आल्सो मूव्ड विद हिम टू दिल्ली. उसके बाद अकबर इन अबाउट 1567 अकबर यूज्ड टू ऑर्डर दैट प्रिपरेशन ऑफ अ लेविशली इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट. जो भी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट थी ना, तो अकबर ने उनके टाइम में काफी उनके इलस्ट्रेशंस बनवाए, जिसमें से एक काफी फेमस होती है दैट इज द पर्सियन ट्रांसलेशन ऑफ द हमजा नामा, विच इज अ सेलिब्रेटेड अरब एपिक अबाउट द लेजेंडरी हमजा. उसमें सैयद अली एंड अब्दुल समाद द सेम ग्रुप along with 100 painters that were drawn from ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर, मालवा, उनके साथ it took 15 years to complete Hamzanama, and Hamzanama consists of 1400 pages of illustrations. This proved to be the training period for many Indian painters. उसके बाद भी उन्होंने काफी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के इलस्ट्रेशंस करवाए, जैसे कि अनवर सुहेली, और एपिक्स जैसे कि महाभारत और रामायण, हिस्ट्री बुक्स जैसे कि चिंगीज नामा, अकबर नामा, एक्सेट्रा. So the first one, this is Anwar Suhaili, the second one is Chingiz Nama's illustration, and the third one is Akbar's Namas. Now Akbar was very fond of painting, and during his reign painting was organized as an imperial establishment और कारखाना. तो उनका पूरा बहुत अच्छा establishment था अकबर के टाइम पे पेंटिंग्स का, जिसकी प्रेस में अबुल फैजी बोलते हैं कि his majesty from his earliest youth has shown a great predilection for this art and gives it every encouragement. स्टार्टिंग से ही उनकी पेंटिंग्स में मुस्लिम्स एंड हिंदूज बोथ यूज्ड टू वर्क, एंड द लाइक 17 पेंटर्स का नाम बोलते हैं अबुल फजी, जिसमें से 13 वर हिंदूज. कुछ हिंदूज लोअर कास्ट के होते थे, जैसे कि दसवंत हु वर द पालकी बियरर्स ऑफ अकबर, एंड देन अकबर्स आइज फेल ऑन हिम एंड ही डिसाइडेड टू ट्रेन देम आल्सो. The painters, they were also given monthly salaries, and the emperor also used to give them rewards on daily basis also. कमोडिटीज जो उनको चाहिए थी पेंटिंग के लिए वो भी उनको प्रोवाइड की जाती थी, एंड फोकस वाज टू कि ताकि वो और नए कलर्स बना सके और टू इम्प्रूव द मिक्सचर ऑफ कलर्स आल्सो. कुछ ऑर्थोडॉक्स थिंकर उस टाइम के अकबर के टाइम पे इस आर्ट ऑफ पेंटिंग को अन इस्लामिक बोलते हैं, जिसको अबुल फैजल ने आर्ग्यू किया है कि पेंटिंग जो होती है दैट मेड द पेंटर एंड अदर्स रिकॉग्नाइज गॉड, बिकॉज वाइल स्केचिंग एनीथिंग व्हिच हैड लाइफ दे रियलाइज दैट गॉड अलोन कुड प्रोवाइड इंडिविजुअलिटी टू देम. द पेंटर्स यूज्ड टू कवर अ वास्ट फील्ड. Their themes included basically war, hunting schemes, mythical beings, building activities, etc. अकबर के टाइम में पोर्ट्रेट पेंटिंग वाज वेरी फेवरेट थीम ऑफ अकबर, तो उनकी पोर्ट्रेट पेंटिंग्स भी काफी हैं, और उसमें से भी अबुल फजल बोलते हैं कि बसवान वाज एन एक्सीलेंट इन ड्राइंग ऑफ फीचर्स ऑफ दोस पोर्ट्रेट पेंटिंग एंड सेवरल अदर ब्रांचेस एज वेल. तो बसवान का काफी नाम आता है पोर्ट्रेट पेंटिंग्स ऑफ अकबर में.
और इसमें ना स्पेशलाइजेशन होता था, लाइक देयर वर लाइक थ्री पेंटर्स, एक कोई आउटलाइन करता था, दूसरा यूज टू फिल द कलर्स एंड थर्ड वन यूज टू मेक द फेस। लेटर जहांगीर ने ये क्लेम किया था कि वो बता सकते हैं कि किस पेंटर ने आउटलाइन बनाई है, किसने कलर्स फिल करे हैं और किसने फेस ड्रॉ किया है। उसके बाद अगर हम जहांगीर के टाइम में बात करें तो मुगल पेंटिंग इट रीच द क्लाइमेक्स बेसिकली अंडर दी जहांगीर। एंड अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग हंटिंग बैटल एंड कोर्ट सीन्स के अलावा भी जहांगीर ने काफी स्पेशल प्रोग्रेस की पोर्ट्रेट पेंटिंग में। और उन्होंने नेचर से रिलेटेड पेंटिंग्स काफी शुरू की, जैसे कि पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा, जिसमें उन टाइम में मंसूर वाज अ वेरी ग्रेट पेंटर जो काफी उस टाइम फेमस हुए थे। Despite those lively studies of animals or birds also, the Mughal painters they had little interest in the study of nature independently. वो नेचर को स्टडी करने में इंडिपेंडेंटली ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन उनकी जो पेंटिंग्स होती थी उसमें नेचर के काफी सीन्स होते थे, लाइक वॉर सीन्स में भी और काफी हंटिंग सीन्स में भी ट्रीज, बर्ड, स्ट्रीम्स और वाटर, हिलॉक्स, उनका काफी यूज था। स्पेशल फीचर की अगर हम बात करते हैं वाज द टोनल एंड द राउंडेड इफेक्ट दे यूज टू गिव टू दैट ट्री ट्रंक्स बेसिकली। उसके बाद अगर हम पेंटिंग शाहजहां के टाइम में बात करें तो इट कंटिन्यूड टू बी पैट्रोनाइज, लेकिन जहांगीर या अकबर जैसा उनमें वो एस्थेटिक सेंस नहीं था। व्हाट ही यूज्ड टू डू इज ही यूज्ड टू मेक पेंटिंग्स विद यूज ऑफ गोल्ड और जस्ट दी कोर्ट सीन्स और वॉर सीन्स। ज्यादा उनके टाइम में उन्होंने दे डू ही डिडंट हैव दैट मच एस्थेटिक सेंस इन पेंटिंग ना। उसके बाद औरंगजेब एज यू ऑल नो, तो वो पेंटिंग लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो आर्टिस्ट थे दे यूज टू दे डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द कंट्री, जिस वजह से जो आज राजस्थान पेंटिंग्स हैं या फिर जो पंजाब हिल्स की पेंटिंग है वो इसलिए उसमें मुगल का ट्रेडिशंस है। लाइक राजस्थान स्टाइल ऑफ पेंटिंग इट यूज टू कंबाइन द थीम्स एंड अर्लियर ट्रेडिशंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया और जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग अलोंग विद द मुगल फॉर्म्स एंड स्टाइल। तो राजस्थान स्टाइल ऑफ पेंटिंग बेसिकली मुगल पेंटिंग से ही मिलके बनी है। एंड देन लेकिन राजस्थान पेंटिंग में जो मेजर थीम्स हैं दे वर बेसिकली माइथोलॉजिकल, लाइक कृष्णा विद राधा और दी रागास एंड मेलोडीज, इस बेसिस पे। नाउ दैट वाज ऑल अबाउट आर्ट। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर एज यू ऑल नो इज लाइक वेरी फेमस। मुगल आर्किटेक्चर दे बिल्ट मैग्निफिसेंट फोर्ट्स, पैलेसेस, गेट्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, सराइज टू हमाम्स टू मॉस्क, काफी चीजें हैं। और most important are the way they used to lay out those formal gardens with running water. In fact, use of running water even in the palaces and pleasure resorts was a special feature of the Mughals. Babur was very fond of gardens and he also laid out a few in the neighborhood of Agra and Lahore. लेकिन मुगल आर्किटेक्चर के अब जो गार्डन्स हैं वो काफी कम बचे हैं, जैसे कि दे आर जस्ट फ्यू, जैसे कि निशात बाग इन कश्मीर, द शालीमार गार्डन एट लाहौर, द पिंजौर गार्डन विच इज नियर कालका एंड द आराम बाग विच इज नाउ रीनेम्ड एज राम बाग विच इज नियर आगरा, दे हैव सर्वाइव्ड। These terraced gardens they give us an idea कि मुगल का गार्डन्स का कॉन्सेप्ट कैसा था बेसिकली। उसके बाद अगर हम आर्किटेक्चर या आर्ट के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडियन आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड अंडर द मुगल्स as most of them were great builders. They appreciated art and creativity that time. Rule of Mughal dynasty from 16th to 18th century, उन्होंने काफी art forms display किए with various architectural styles that developed vigorously around that time. And उनकी art में they used to show a symmetry and a decorative amalgam of Persian, Turkish and Indian architecture. और कुछ यूनिक फीचर्स होते थे जो सारे मुगल आर्किटेक्चर्स में हैं। बेसिकली द फर्स्ट वन इज लार्ज हॉल्स, द सेकंड इज bulbous domes, the third is slender minarets. They used to have slender minarets with cupolas at the four corners and the delicate ornamentation. काफी डिटेल्ड वर्क है उनके सारे आर्किटेक्चर पर। नाउ अगर हम रूलर वाइज बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी एंड ही हैड अ वेरी फाइन एस्थेटिक टेस्ट, लेकिन उन्हें ज्यादा टाइम नहीं मिला इंडिया में ज्यादा पेंटिंग्स बनाने, ज्यादा आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स बनाने का। लेकिन उनके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर की उसमें रेगुलरिटी और सिमेट्री होनी चाहिए, जो उन्हें इंडिया की बिल्डिंग्स में नहीं मिली, बी एट लोधी टाइम के पीरियड या फिर बाकी जो बिल्डिंग्स थी उन्हें उसमें डिससेटिस्फाइड थे क्योंकि उनमें ना तो सिमेट्री थी और ना ही कुछ रेगुलरिटी थी। तो उन्होंने इस बात का काफी ध्यान रखा। जो मॉस्क बोले जाते हैं ना अयोध्या और संभल के, दैट इज एट्रीब्यूटेड टू हिम, दे वर एडेप्टेशंस ऑफ अर्लियर बिल्डिंग्स। तो उससे भी हम उनके आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट का ज्यादा आइडिया नहीं लगा सकते हम। बाबर के बाद शेरशाह का काफी इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग्स उस टाइम की, जैसे कि द वंस एट सासाराम एंड दिल्ली। सासाराम का जो सीरीज ऑफ मॉजुलम्स एंड विच इज मॉडल्ड ऑन द ऑक्टेगनल और द वंस लोधी टॉम्स एट दिल्ली दैट आर फाउंड। उसके बाद द आउटस्टैंडिंग अमंग्स द टॉम्स एट सासाराम जो है इज द मॉजुलम ऑफ शेरशाह। बेसिकली इट वाज बिल्ट इन द सेंटर ऑफ अ लार्ज पॉन्ड और पर्सी ब्राउन उसकी
उसमें लिखते हैं कि इट्स रिफ्लेक्शन इज क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ मूवमेंट एट द सेम टाइम डुप्लीकेटिंग इट्स बल्क। बेसिकली शेरशाह की जो मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो इट यूज टू, जैसे ताजमहल का है तो इट इज गिव्स एन इल्यूजन ऑफ बीइंग लाइट एंड एयरी, whereas शेरशाह का मॉन्यूमेंट इट गिव्स द इंप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड सॉलिडिटी which are considered important features in architecture and are appropriate expressions of Shershah's character as well. उसके बाद दिस इज बेसिकली पुराना किला और ओल्ड फोर्ट दैट वाज बिल्ट बाय शेरशाह एंड वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ द Humayun's Jahanpana and is a massive structure with walls of grey sandstone and has an impressive gateway of red sandstone with white marble inlay and has occasionally inset with blue glaze. और इसके बाद यहाँ पे ही द ओनली बिल्डिंग दैट हैज बेसिकली सर्वाइव्ड इनसाइड इट इज द रॉयल चैपल, और जो उसका मैग्निफिसेंट गेट है ओल्ड फोर्ट का दैट इज बीन बिल्ड बाय महामंगा इन 1561. द ओनली बिल्डिंग दैट हैज सर्वाइव्ड इज किला ही कोना और द रॉयल चैपल यू कैन से. और इसका मेन फीचर है इस मॉस्क का इज इट्स प्लीजिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फेकेड व्हिच कंसिस्ट ऑफ दोस 5 arched entrances, as you can see in the second picture, 5 arched entrances of those graceful proportions, and each of them is set within a rectangular frame. The central archway is larger than the ones flanking it on each side. The 3 central archways, they have graceful oriel windows, and that is a representation of Rajasthan style of architecture basically. The decorations जो है वो काफी simple रखे गए हैं, and it consists of basically white marble inlay और inset patterns of colored gaze. Narrow turrets हैं दोनों साइड में सेंट्रल बे के, and at the corners at the back wall of the mosque they give strength to the building and balance the single Lodi style flat roof. So you could see around that. So these buildings they have considered the climax of the Lodi style of buildings and beginning of a new phase. अगर हम रियल फेस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो दैट इज बेसिकली विद अकबर. अकबर हैड द मीन्स एज वेल एज द स्ट्रॉन्ग डिजायर to undertake construction on a large scale. Babur ki tarah he not only had a fine aesthetic taste but was personally interested in the construction of building which he not only supervised but sometimes himself engaged in the work. He was concerned above all to bring together the fine architectural traditions existing within the country. अकबर के टाइम पे उनके 2 traditions काफी माने जाते हैं, and those 2 traditions are the उनके आर्किटेक्चर में Persian traditions and the Indian traditions. Persian traditions is basically the true double dome. अब true double dome मतलब यूज किया जाता था क्योंकि it used to enable a very pleasing skyline and it had an interior roof in keeping with that enclosure inside. और दूसरा है is the arrangement of rooms inside. So instead of that one enclosure, there were separate rooms in the corridors which were linked by passages. और ये अरेंजमेंट हमें याद दिलाता ऑफ द प्री टर्किश बिल्डिंग्स. और अगर इंडियन फीचर की बात करें इज दैट ही यूज्ड टू हैव दोस फॉर्मल गार्डन विद लार्ज गेट. जो पर्शियन आर्किटेक्चर है वो बेसिकली उनके हुमायूं टोम जो बनवाया था उसमें देखा जाता है, एंड द नेक्स्ट जो इंडियन ट्रेडिशन है वो आगरा फोर्ट वगैरह में देखा जाता है. Now this is basically Humayun tomb which was started by his widow of Humayun which is Haji Begum in 1564. It is made up of red sandstone and it is placed on a high platform. The dome had a slightly constructed neck and it was rose drive and it is not exactly copied from the Timurid architecture, लेकिन बोला जाता है कि Timurid architecture का representation है ये, क्योंकि इसमें यू नो दैट अरेंजमेंट ऑफ रूम्स वगैरह दैट इज प्री टर्किश बिल्डिंग्स, तो इस हिसाब से उसको बोला जाता है. एंड इसका जो डोम है इट यूज्ड टू प्रोवाइड अ वेरी प्लीजिंग स्काईलाइन व्हिच इज अ वेरी फेमस इन दिल्ली एज वेल. उसके बाद हुमायूं टोम के साथ साथ दैट वाज बिल्ट इन दिल्ली, अकबर बिल्ट हिज मैग्निफिसेंट फोर्ट एट आगरा आल्सो and with the foundation of a new city and the place complex 26 miles away at Sikri. तो आगरा का फोर्ट 1565 में स्टार्ट हुआ and it completed in 8 years time. It has massive battlements, those crenellated walls, उसके gates जो है those has those 2 octagonal towers and they are dressed in red sandstone basically. और सेम इसी तरीके के फोर्ट्स उन्होंने लाहौर, अजमेर और इलाहाबाद में भी बनवाए थे. अब अगर हम अगर हम उनके फतेहपुर सीकरी की डिटेल में बात करें, उससे पहले उन्होंने जो 2 इम्पोर्टेंट महल्स बनवाए थे देवर अकबरी महल एंड दी जहांगीरी महल दैट वर बेस्ड ऑन मान मंदिर इन ग्वालियर फोर्ट एंड हैज मेनी राजस्थान फीचर्स जैसे कि हैवी रेड सैंडस्टोन ब्रैकेट्स या बालकनीज, और उसमें दे यूज्ड टू मेक दे हैव पिकॉक एंड सर्पेंट मोटिव्स एज वेल. वॉल्स और स्टेयरकेस दे कैरी गीज फ्लामिंगोस, so you could see the mythical animals का भी काफी यूज करा गया इन दोनों महल्स में.
उसके बाद उन्होंने फिर सीकरी में भी, विच वॉज लेटर नेम्ड एज फतेहपुर आफ्टर द विक्ट्री ऑफ एट गुजरात 1568-69 के टाइम पर, काफी उन्होंने, अकबर ने काफी पैलेसेस और जो पब्लिक बिल्डिंग्स बनाए हैं, दे वर ओनली मेड द नेक्स्ट 15 years ओनली। तो अगर हम सीकरी से स्टार्ट करें तो दे एंटरिंग द पैलेस कॉम्प्लेक्स, जब आप एंटर करते हो तो इट इज अ गेट विच इज कॉल्ड नौबत खाना विद द रॉयल कारखानास एंड द मिंट ऑन द राइट, एंड अभी काफी र्यून कंडीशन पे है। और इट रीचेस दी वास्ट कोर्टयार्ड जो कि दीवाने आम का एक पार्ट फॉर्म करता है। अब दीवाने आम के पीछे राइट साइड पर देर इज अ ट्रेजरी और अ होल कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स जिसमें कॉपर सिल्वर और गोल्ड कॉइन स्टोर होते हैं, जिसको दीवाने खास बोला जाता है। उसके बाद दीवाने खास के साइड में देर इज ऑल्सो अ बिल्डिंग विच इज नोन एज आंख मिचोली और हाइड एंड सीक विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्रेजरी। फिर कोर्टयार्ड के एंड पे देयर बिहाइंड द लाइक दीवाने आम इज अ डबल स्टोरीड बिल्डिंग जिसको दौलत खाना और द रॉयल पैलेस बोलते हैं। द रूम्स एट द लोअर लेवल दे वर बेसिकली दे यूज्ड टू फॉर्म द दीवाने खास और यू कुड से द प्राइवेट कंसल्टेशन रूम। पहली फ्लोर पे देयर इज अ रूम जहां पर अकबर आफ्टरनून में रेस्ट करते थे और उनको बुक्स वगैरह पढ़ के सुनाई जाती थी। इसको ख्वाब गृह या फिर बेडरूम भी बोला जाता है। द पैलेस ऑफ screened off from the public buildings by a wall which has been demolished right now. एम्परर के पैलेस के सामने लाइक दौलत खाना के सामने इज अनूप तालाब विद which है with a platform in the center, और उसके this along with those lower rooms in the palace was the place where Akbar used to sometimes held the philosophical debates or organize those musical parties. It was to this place that some philosophers were drawn up on a court from which they discoursed. और अनूप तालाब के एक कॉर्नर में इज अ स्मॉल स्क्वायर बिल्डिंग विच इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड द वॉल्स ऑफ विच आर ब्यूटिफुली कार्व्ड एज इफ मेड ऑफ वुड। तो दिस इज मिस कॉल्ड द टर्किश सुल्ताना हाउस, लेकिन ये माना जाता है कि टर्किश सुल्ताना हाउस नहीं हो सकता क्योंकि नो क्वीन कुड हैव लिव्ड इन सच अ पब्लिक प्लेस, so this was possibly a resting place for important visitors. So the royal haram, you could say, was on the side of this emperor's palace. It had a guard house also and a high wall to separate it from the public buildings. ये वाली वॉल, दिस टू हैड डिसअपियर्ड नाउ। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, द फर्स्ट इज जामा मस्जिद। तो द जामा मस्जिद इज द मोस्ट मैग्निफिसेंट बिल्डिंग एट सीकरी एंड इट इज विद एन इंटीरियर कोर्टयार्ड ऑफ अनयूजुअली लार्ज proportions. और द मेन सेंचुरी इट हैड आर्च्ड entrances, domes with pillared kiosks all along the parapet and a cloister along with the courtyard also, where various types of pillars and decorative devices are used. तो पर्सी ब्राउन इसको बोलते हैं कि इट इज इन द मास्टरली मैनर इन विच दिस सेंचुरी हैज बीन फॉर्मुलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड दैट गिव्स दिस मॉस्क इट्स फाइन कैरेक्टर। उसके बाद जामा मस्जिद के बाद में देयर इज द जोधा भाई पैलेस। जिन जोधा भाई पैलेस इज अकॉर्डिंग टू लाइक जोधपुर राजा की ख्यात विच इज अ बुक, उनके अकॉर्डिंग जोधा भाई वॉज द डॉटर इन लॉ ऑफ अकबर, और वो यहाँ पर लिखा गया है नॉट हिज वाइफ। तो उसी अराउंड ये पैलेस बना गया है एंड इट हैज दी वाटर फ्रॉम द लेक बिलो वॉज lifted up to provide for running water and the fountains as well. और काफी ब्यूटीफुल लगता है इसकी स्काईलाइन एंड एवरीथिंग। तो द बेसिस कॉलम्स कैपिटल्स, और ये उसमें ना ट्रेडिशनल टाइप है टेम्पल पिलर्स का बेसिकली, इसलिए भी बोल सकते हैं लाइक जोधाबाई वाज द हिंदू प्रिंसेस। तो जो टेम्पल पिलर्स या फिर जो इसमें है ना बेसिकली दैट इज राजस्थान और गुजरात बेस्ड। तो इट ऑल्सो हैज अ चैपल और द पूजा रूम। तो यू कुड से दैट इट इज बेसिकली क्योंकि जोधा भाई वॉज हिंदू, तो उनके में जो आर्किटेक्चर है वो बेसिकली टेम्पल टाइप का यूज किया गया है। इसके बाद काफी बिल्डिंग्स और भी हैं, लाइक बीरबल का महल भी बोला जाता है, और सलीम्स मदर वाज द कछवाई प्रिंसेस, उनका भी एक महल है विच इज मरियम उज जबानी, और उसमें भी काफी चीजें हैं। लेकिन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके बाद आता है इस दी थर्ड बिल्डिंग विच इज दी पंच महल विच वॉज जस्ट इनसाइड द हराम कॉम्प्लेक्स। तो जो वॉल इनको सेपरेट करती थी पब्लिक बिल्डिंग से, ये भी डिसअपियर हो चुकी है। It was a five-storied building with receding terraces and each with a flat roof supported by intricately carved pillars, each of a different design. It was meant to be a place where the women of the haram could take air after all outsiders had been excluded. The stone screens which had provided privacy to the leaders, they was destroyed by Lord Mayo in 1890 in an effort to improve its appearance. और उसके बाद भी काफी बिल्डिंग्स में देखा जा सकता है जैसे कि दीवाने खास विच इज नाउ आइडेंटिफाइड एज ज्वेल हाउस, इट यूज्ड टू हैव अ सिंगल हॉल एक्सेट्रा। एंड उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दी इन द कोर्टयार्ड इज द टूम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती हु एक्विजिटली कार्व्ड स्टोन स्क्रीन। द मार्बल वरांडा जो है आउटसाइड दैट वाज एडेड बाय शाहजहां लेटर।
उसके बाद on one side of the mosque is a massive gateway leading up to a flight of stairs, and this is the Buland Darwaza which was started by Akbar in 1573 after his victory at Gujarat. जो गेट है that is in a style of what is called a half dome portal. What was done was to slice the dome into a half basically. तो जो sliced portion है उसको आउटसाइड मूव कर दिया गया है ड्यूरिंग द फेकेड ऑफ द गेट. बाकी जो स्मॉलर डोर्स हैं दैट वुड बी मेड इन द रेयर वॉल वेयर द डोम एंड द फ्लोर मेट. तो ये जो डिवाइस है, ये जो चीज पे बिल्ड किया गया, जो दैट इज बेसिकली टेकन फ्रॉम ईरान एंड इट बिकेम अ फीचर इन मुगल बिल्डिंग्स लेटर ऑल्सो. जो पैरापेट है ऑन टॉप ऑफ द फ्रंट ऑफ द गेट हैज अ सीरीज ऑफ कियोस्क इज बेसिकली छतरीज with cupolas which break the skyline. Even though this massive doorway throws the rest of the building like out of proportion, it has remained a most impressive building meant to create a sense of awe. So that is widely famous. उसके बाद with the consolidation of the empire, the Mughal architecture reached its climax. Like towards the end of Jahangir's reign, began the practice of putting up buildings entirely of marble and decorating the walls with floral designs made of semi-precious stones. तो इस मेथड को डेकोरेशन के को बोलते हैं पीटर डुआ, विच वाज यूज्ड इन दी स्मॉल बट स्लेंडर टूम्ब ऑफ इतमद उद दौला बिल्ड ड्यूरिंग द जहांगीर रेन. A special feature जो है इस रेक्टेंगुलर बिल्डिंग की were the octagonal towers at the corners with graceful cupolas. लाइक अकबर के खुद की टोम की तरह, जो जहांगीर ने ही फिनिश करवाया था बाद में, इसका कोई डोम नहीं है बट ओनली अ स्मॉल क्लोइस्टर ऑन द फ्लैट रूफ विच इज डेकोरेटेड विद डिजाइन ऑफ परपोर्टेड स्क्रीन्स. उसके बाद दैट वाज ओनली जहांगीर के टाइम में इतनी ही बिल्डिंग्स बनी है, ज्यादा नहीं बनी है. बेसिकली अकबर की जो बिल्डिंग्स अधूरी रह गई थी उन्होंने वो ज्यादा कंप्लीट करी है और उनकी खुद की बिल्डिंग ज्यादा नहीं थी. उसके बाद द मोस्ट फेमस बिल्डिंग विच इज ताजमहल, विच इज जस्टली रिगार्डेड एज द ज्वेल ऑफ द बिल्डर्स आर्ट, and it is brought together in a pleasing manner all the architectural forms which was adopted by the Mughals earlier. So the chief glory of the Taj is the massive dome and those slender minarets linking the platform to the main building. Decorations जो है काफी मिनिमम है इसमें, just the marble screens और Petra Dura or the inlay work you can say and the chhatris which is adding to the effect. उसके बाद ताजमहल is the logical culmination of the development of imperial architecture in the country and is sufficient to set at rest the fable that the Taj was designed by an Italian जिनका नाम Geronimo Veronia था. लेकिन amongst others whose names are also mentioned as architects that is Ustad Isa Ifnedi and Ustad Ahmad which were from Lahore. एक मेन्यूस्क्रिप्ट जो बताती है कि ताज का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, तो वो उसमें बोला जाता है कि शाहजहां ने पहले काफी एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया एंड देन ही यूज्ड टू आस्क डिजाइनर्स टू सबमिट प्लान्स टू हिम फॉर द प्रपोज्ड टॉम्ब ऑन पेपर. उसके बाद शाहजहां आल्सो हैड हिज ओन आइडियाज अबाउट द टूम्ब एंड आल्सो मेड वैल्यूएबल सजेशंस एज वेल. उसके बाद काफी वुड में सबसे पहले मॉडल्स बनकर तैयार हुए. उसके बाद फाइनल मॉडल तैयार हुआ दैट इज नोन एज ताजमहल टुडे. दैट उसके बाद इट वुड दस अपीयर कि देर, इससे हम मान सकते हैं कि कोई एक सिंगल डिजाइनर नहीं था ताज का. मुगल पेंटिंग्स की तरह इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट. और अमानत खान शिराजी इट हैज, लेकिन अमानत खान शिराजी बेसिकली ही वाज द कैलीग्राफर एंड इस्माइल खान ही वाज द डोम बिल्डर जिनका नाम पूरा प्रॉपरली मेंशन्ड है. और हम ईबी हेवल के साथ बिल्कुल एग्री कर सकते हैं कि उन्होंने बोला था कि ताज इज अ लिविंग ऑर्गेनिक ग्रोथ बॉर्न ऑफ द इंडियन आर्टिस्टिक कॉन्शियसनेस. The Taj is not an isolated phenomenon, the creation of a single mastermind, but the glorious consummation of a great epoch of art. उसके बाद काफी और बिल्डिंग्स भी बनी है शाहजहां के टाइम पे. बेसिकली मॉस्क जो, जिसमें द फर्स्ट वन इज द मोती मस्जिद इन द आगरा फोर्ट एंड द second one is Jama Masjid in Delhi, which is built of red sandstone basically. उसके बाद Red Fort, which is built by Shah Jahan in Delhi, is famous for the stylized scale of justice in the Rang Mahal, and it is architecturally the most impressive is the flat roof, which is Diwan-e-Aam, where all the skills of the Hindu pillar maker have been used to provide clear vistas from the throne. And the multi-fluted arches, they gives an effect of rippling water as well. एंड काफी हमें एक्यूरेट एंड द ट्रेबिट फॉर्म्स ऑफ बिल्डिंग्स का ऑफ शाहजहां में रेड फोर्ट में देखने को मिलता है. उसके बाद अगर हम औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब वाज बेसिकली इकोनॉमी माइंडेड, तो ना ही उनका आर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट था और ना ही आर्किटेक्चर में. तो जो द मुगल आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस काफी डिक्लाइन हो गए थे उस टाइम पे एंड दे वर बेस्ड ऑन बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदू and Turco-Iranian forms and decorative designs that continued without a break into the 18th and early 19th century.
और औरंगजेब ने ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं बनाई, बट विच इज वेरी फेमस इज द ताज ऑफ द डेक्कन, विच इज बीबी का मकबरा, विच इज प्रेजेंट इन औरंगाबाद, जो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। बाकी ज्यादा बिल्डिंग्स उन्होंने नहीं बनवाई। उसके बाद अगर हम, नाउ द कंक्लूजन पार्ट इज, मुगल ट्रेडिशंस दे हैव इन्फ्लुएंस्ड द पैलेसेस एंड फोर्ट्स ऑफ मेनी प्रोविंशियल एंड लोकल किंगडम्स। जो अब हरमिंदर साहिब है, या फिर गोल्डन टेम्पल यू कुड से एट अमृतसर, दैट इज आल्सो बीइंग बिल्ट ऑन द आर्च एंड डोम प्रिंसिपल, एंड incorporated has has incorporated many features of the Mughal traditions of architecture. अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट मुगल आर्किटेक्चर में चाहे तो दैट इज कि देर वॉज नो अटेम्प्ट टू स्टेब्लिश सम काइंड ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कि अगर हम मुगल रूलर्स है तो हम बेसिकली मुस्लिम एलिमेंट्स यूज करेंगे या फिर हम हिंदू एलिमेंट्स यूज नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने जो एलिमेंट्स उनको लगाया, जो डिवाइसेस उनको लगे कि यूजफुल और आर्टिस्टिक हैं, तो दे यूज्ड बोथ ऑफ देम, and it was their fine aesthetic sense and the skill of the Indian craftsmen which effected a conjunction which was both graceful and pleasing. So that all. Thank you. ओके गुड। चलिए, तो ये तो अच्छा, थोड़ा सा फास्ट फिर हो गए थे, 14 मिनट्स टाइम था तुम्हारे पास, लेकिन चलिए इट वाज गुड। और इसमें एक चीज ऐड करना है, जब आप सबमिट करोगे तो डिफरेंट वर्ड्स जो आपने नहीं ऐड किया था, और दूसरा आप ऐड करोगे स्टाइल, द नेम ऑफ द स्टाइल, एक एक स्लाइड में, दैट्स ऑल व्हेन यू will submit this PPT. Manvi, getting a point? Okay, sir. That's only two things, and that was very good presentation. One thing I was wondering that आप लोगों ने कुछ ये किया कि कोई हिंदू स्ट्रक्चर मुगल्स ने बनाया था? मानवी, इतना स्टडी किया तो समथिंग न्यू इस पे आप लोग, दिस इज माय क्वेश्चन टू यू पीपल, क्या कोई भी हिंदू स्ट्रक्चर मुगल्स ने एस्टेब्लिश किया था, किसी टाइप का मंदिर या किसी टाइप का फोर्ट? दैट आई नो, but what about any temple? And suppose that they were not partisans, that means they were very fond about the every culture. So any idea that they could create any Hindu or any Sikh or any Jain or any Buddhist or any other structures? Anybody? कभी अर्चना, कभी सोचा इस बारे में? नहीं सर, ये वाला तो इसका आइडिया नहीं है। उन्होंने पर्सनली तो ऐसे जोधा बनाया भाई तो के लिए नहीं था। मंदिर बना था शायद। हाँ, जोधा भाई इनसाइड है वो। हाँ सर, वो तो उनके पैलेस में ही बना हाँ था, हाँ, वो अलग से पैलेस कुछ में। नहीं बना था। नहीं तो ये देखो बना है, आई हैव सम आइडिया। वो जब हम मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिसाइड करते हैं तो एक स्टेज, हमें एक स्टेप आगे जाना है। तो थोड़ा सा कभी वक्त मिले मानवी तो इस पे एक आध रिसर्च हो जाए, हाँ ठीक है? थोड़ा नया श्योरली आइडिया सर। मिलेगा, नया आइडिया मिलेगा जी इस पे। जी सर। हाँ, कि हम लोग बात करते, नो डाउट उन्हीं को बोला जाता है जिन्होंने, जितना उनको काम मिलता है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो ऑब्वियस, तो टफ स्टेज वही होता है ना, स्टेज 1 2 3 4। हाँ, तो जो टफ स्टेज है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स कुछ एक बस एक चार्ट बना के लिखें, अपार्ट फ्रॉम द apart from the all those Islamic structure. Yes, everybody knows that the Hindu ideas or different religious ideas, architectural ideas they took and assimilated. That was very fantastic. But what about the Hindu temple or Hindu structure? So I mean to say, तो ये क्लास, तो ये क्लास का आप लोगों के लिए है कि क्या कुछ ऐसा, तब तो हम उनको एक तरह से ये क्लीन चिट दे पाएंगे आयुष। हाँ, यस सर। क्यों नहीं सोचा ये आज तक? नहीं सर, टेम्पल बनाने से क्लीन चिट नहीं नहीं, मतलब टेम्पल बनाने से क्लीन चिट, क्योंकि देखिए ये पॉलिटिक्स है, ये कहीं पे आपके रिलीजन के साथ ना अटैचमेंट नहीं दिखाता है। रिलीजन इज इंटायरली डिफरेंट थिंग माय डियर। सर, इट्स डेमोक्रेसी होती तो इंटायरली, शायद राम मंदिर बनवा देते वो लोग भी। मतलब इट इज इंटायरली। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जहां हम बार बार कुछ हिस्टोरियंस ये शो करने की कोशिश करते हैं कि दे आर नॉन बायस पीपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, so my limited point is that where is all those structures?
where the paintings, yes, we had some paintings, कुछ paintings हैं हमारे पास, दसावन बसावन ने बनाया पेंटिंग्स जो कि नॉन रिलीजियस था, लेकिन आर्किटेक्चर को लेके अभी भी, दो आई एम नॉट इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाना होता है तो हर एक चीज में एक्सपर्टीज नहीं हो सकता है, ठीक है। दिस क्वेश्चन आई मे बी आस्क्ड विद अदर पीपल आल्सो, बट आप लोगों के लिए एक ब्रेन स्टॉर्मिंग है कि आप लोग कुछ ढूंढिए, और अगर कुछ मिले तो लिखना चाहिए, जिससे कि आपको और अच्छे मार्क्स आएंगे, लगेगा कि नहीं है प्रियंका कि ये कुछ यस सर, डेफिनेटली। हाँ गौतम, ढूंढा है कभी, इतने सालों से पढ़ रहे हो, कुछ ढूंढा? नो सर। अर्चना, वांट टू से समथिंग? यस सर, टेम्पल का रिस्टोरेशन रेनोवेशन तो वो करते ही थे, मतलब और